Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about equality in democratic India. Learning objective: equality in Indian democracy, government responsibility to promote equality and decisions making powers, and the world struggle for equality. Then equality, better decision making mechanism or people participation in the decision making process, government accountability to its citizens, accommodation of difference, enhancing ह्यूमन डिग्निटी. तो इक्वालिटी क्या होती है कि हम ह्यूमंस की डिग्निटी को बढ़ाता है, और इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी सोच के लिए, सोसाइटी के लिए. हमारे लिए इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है. आर द वेरियस की एलिमेंट इन द डेमोक्रेसी. Though all these elements are very important, equality is the foundation of democracy. Equality is an important principle of the democratic government. It means that all the citizens of a country are provided with the same status, rights and responsibility. तो equality का मतलब होता है कि सबके पास सेम स्टेटस है, गवर्नमेंट की नज़र में सब सेम स्टेटस है, सबके पास सेम राइट्स है, सबको सेम अपने जो भी उनके राइट्स हैं उनको यूज़ करने का अधिकार है, सब गवर्नमेंट की नज़रों में सब बराबर हैं. ठीक है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. Equality is the central theme or soul of democracy. It is the precondition which ensures the justice to all the people of a society or country. तो equality होती है central theme of a soul of democracy, and ये हमें justice करना सिखाती है. इन द प्री कंडीशन विच इंश्योर्स जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी और कंट्री. हेयर इक्वालिटी मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. तो इक्वालिटी है मतलब सब सोशल इकोनॉमिकली सब बराबर हैं. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय लॉज ऑफ लैंड. The state shall not discriminate between people on the basis of place of birth, religion, sex, caste, creed, race और wealth. तो मतलब इक्वालिटी क्या है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता on the basis of birth, religion, sex, caste, creed, race और wealth. Then we have fact check. The constitution of a country is a document which lays down the basic rule and regulation of the people and the government of a country. तो constitution करता है, एक ऐसा document है वो जो सबको rules and regulation सिखाता है, जिसमें people भी आ गए, government भी आ गए, country भी आ गई और court भी आ गया. ठीक है. Then we have constitution equality. Our constitution recognize every person as equal. हमारा constitution कहता है कि सब equal हैं. Even the preamble of our constitution clearly state that all Indian are entitled to equality of status and opportunity. तो हमारा preamble कहता है कि सभी Indians status और opportunity में equal हैं. This means that all the individuals in the country, male or female, from all caste, religion, tribes and educational and economic backgrounds are recognized as equal. तो चाहे कोई किसी भी ट्राइब से, किसी भी कास्ट से, किसी भी सिस्टम से है या एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, तो वो सब क्या है, बराबर है. दैट इज एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. पीपल आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क. मोर ओवर आर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन एंड स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली. तो हमारा प्रेम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कहता है कि हम सब अपना धर्म मानने के लिए और अपनी भाषा को बोलने के लिए बिल्कुल फ्री हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर इक्वालिटी. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. सब कानून के आगे सब बराबर हैं. एंड दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैड टू ओबे द सेम लॉ. इसका मतलब है कि सबको सेम लॉ मानना भी पड़ेगा. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस of religion, race, caste and place of birth or gender. So this is, you can see the picture of preamble of our constitution. Then we have next is every person can use all public places including playgrounds, hotels, shops, markets, wells, roads and bathing ghats. तो हम सब जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो सरकार के ने पब्लिक प्लेसेस बनाए, चाहे वो पार्क है, चाहे वो रोड है, चाहे वो कोई म्यूज़ियम है, ठीक है, चाहे वो कोई घाट है, हम सब उसको इक्वली यूज़ कर सकते हैं. अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश्ड एंड इट इज़ नाउ कंसिडर अ क्राइम. अनटचेबिलिटी को अबॉलिश ख़त्म कर दिया गया है और अब ये क्राइम है. Political equality in India, we follow universal adult franchise. The right to vote and participate in election is an essential feature of democracy. This right was given earlier only to male citizen who own property. तो अब सबको वोट देना सबकी अधिकार है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है. ठीक है. और ये पहले ये सिर्फ मेल्स को दिया गया था, लेकिन अब ये सबको दिया गया है. Then we have fact check. During the 19th and 20th century, the suffragette movement swept through various nations demanding the right to vote for women
तो 19th और 20th सेंचुरी में सफ्रागेट मूवमेंट चला था, जिसमें राइट टू वोट फॉर वुमेन भी किया था कि वुमेन्स भी वोट देंगी, एंड द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू वुमेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में ये वोट दिया गया महिलाओं को। In India, the right to vote was given to the entire world population irrespective of caste, color, religion, gender or creed at the time of independence, and only those who are deemed unsound of mind and people convicted of certain criminal offences are not allowed to vote। ठीक है, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही सभी को, चाहे वुमेन्स हो चाहे वो मेल्स हो, सभी एडल्ट्स को दिया गया वोट मत देने का अधिकार, और ओनली दोज हु आर डीम्ड, सिर्फ उनको रखा गया जो अनसाउंड ऑफ माइंड एंड पीपल कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो जो दिमाग से जो रिटार्डेड है, मतलब जो सही तरह से सोच समझ नहीं पाते और जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में फंसे हुए हैं, सिर्फ उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये है मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेसिस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन men and women, rich and poor, educated and uneducated, all are treated as equal. Each adult citizen get one vote to cast. सबको एक वोट देना ही है। People enjoy the right to elect and even remove their ruler. तो उनके पास राइट है अपने रूलर को इलेक्ट करने का और उनको हटा देने का। सोशल इक्वालिटी, सर्टेन सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन अनेबल टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड सोशली, मैनी हैव बीन इवन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, दे नीड टू बी प्रूव्ड विद अपॉर्चुनिटीज एंड असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो कि अनेबल टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, जो कि इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जिनकी नहीं हुई है, और उनको एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिली है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सम प्रोविजंस हैव बीन इंक्लूडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट इक्वालिटी एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ बदलाव किए गए, जिससे कि सभी सोसाइटीज़ को बराबर का मौका मिले। सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे सीट रिजर्व की गई इन लोगों के लिए जो डिस्क्रिमिनेट कर दिए गए थे। एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एट अ क्राइम। तो अनटचेबिलिटी को क्राइम बोला गया। देयर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी सीट रखी गई। द राइट टू एजुकेशन बिल हैज़ बिन पास्ड। सबको राइट टू एजुकेशन है। एंड चाइल्ड लेबर लॉज एंड फूड सिक्योरिटी बिल हैव ऑल्सो बी पास। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को क्या बनाया गया, क्राइम माना गया, और फूड सिक्योरिटी भी उनको दी गई। Then we have economic equality. Economic equality means that every Indian citizen should be free to seek any form of employment and must be given equal economic opportunity. तो इसका मतलब है कि सबको employment का कोई भी काम वो कर सकता है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ले सकता है। Equal economic opportunity means that colors, caste, gender, religion, etc. तो इक्वल का मतलब है कि कास्ट, जेंडर और रिलीजन में उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, रोक नहीं सकता। ठीक है, शुड नॉट बी कंसीडर वाइल सीकिंग एन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का बेसिस ये नहीं रहेगा कि कास्ट क्या है, जेंडर क्या है और रिलीजन क्या है। Equal pay for equal work also ensure economic equality and should be followed in order to achieve true economic equality. Wealth should be distributed fairly and not be concentrated in the hands of a few people. तो यहाँ पे सबको इक्वालिटी दी गई कि सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी है। ठीक है, सब अपना काम ढूंढ सकते हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स। इन अ डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ इन एनी वन लैंड। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट की गई गवर्नमेंटल बॉडीज़ में, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑन इन एनी वन लैंड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉज and rules and regulation in our country. It divides the power between legislature, executive and judiciary. तो तीन इसके मेन पावर के तीन मेन सोर्स होते हैं कि एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है, कि एक जो बनाता है, एक जो उनको पास करता है और एक जो एग्जीक्यूट कराते हैं। The legislature is responsible for making laws. Legislature बनाते हैं laws and the parliament is supreme legislative body in India. The parliament passes laws on the matters and that lie in the jurisdiction according to the constitution. तो जिसके जो jurisdiction में आता है उसके according legislature बनाता है वहाँ के लिए
laws. Then the executive implement the laws made by the legislature, तो executive उनको implement कराते हैं, and the president is the constitutional head of executive. The real executive power however is vested in the council of minister and with the prime minister as its head. तो जो council of minister होता है, prime minister होते हैं, ये head होते हैं यहाँ के, और ये executive power में होते हैं कि लोगों से implement कैसे कराना है. The judiciary in India is an independent body, और judiciary है independent bodies जो court वगैरह होती हैं. Its independence sure a free and fair society under the rule of law. The main function of the judiciary is protected the law and punish their violators. ठीक है, तो जो सही से नहीं मानता है, लॉ को तोड़ता है और कुछ गलत वायलेंस करता है, तो उसको सजा देती है जुडिशरी. इट इंश्योर्स दैट अ गवर्नमेंट रिमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट न्यू लॉज आर मेड इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडेंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो भी लॉफुल होनी चाहिए, पूरे लॉ के अनुसार काम करे, और जो भी वो गाइडलाइंस दे रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होनी चाहिए. Government responsibility to promote equality. Fundamental rights promote the protect every individual dignity. These rights are mentioned in the Constitution of India and are protected. तो fundamental rights सबके लिए दिए गए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सबकी डिग्निटी को, और ये दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. In case of their infringement or violation even by the state itself, an individual can take and cast the highest legal authority, the Supreme Court of India. चाहे स्टेट करे चाहे कोई और, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वो कट ऑफ करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके और शिकायत दर्ज कर सकते हैं. दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. तो स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस और रेस. देन नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, place of birth and any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to. तो कोई भी citizens shall on ground only of religion, कोई भी जो citizens है उसका ground religion, race, caste होगा तो उसको discriminate बिल्कुल नहीं किया जा सकता. subject to disability, कोई disability है, कोई liability है तो उसको हम restrict नहीं कर सकते हैं. access to shops, public रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट. तो कोई भी मान लिया किसी भी चाहे जगह से हो, किसी रेस से है, किसी कास्ट से है, तो कोई भी हम पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल वगैरह यूज़ करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता. और द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. तो जो भी कोई वेल्स है, टैंक्स हैं, कोई कुएं हैं, टैंक्स हैं ना, तो पब्लिक घाट्स हैं, तो वो भी सब लोग उतना ही इक्वली यूज़ कर सकते हैं जितना कि अपर कास्ट के लोग. तो कास्ट वहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है. Our constitution makes the government responsible for implementing the concerned law and ensuring the equality for all. The government has tried to implement equality in two ways, through laws and through various social economic programs or schemes. तो कॉन्स्टिट्यूशन देखता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंट कराए सभी रूल्स को, सभी लॉज को, और गवर्नमेंट ये हमेशा कोशिश करती रहती है इम्प्लीमेंट कराने के. इसके दो तरीके हैं कि वो करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स कराते हैं या स्कीम्स चलाते हैं. There are several laws in India that protect a citizen right to be treated equally. तो ऐसे several laws हैं इंडिया में जो लोगों को equally treat करने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं. For example, the laws to help scheduled caste, scheduled tribes and other disadvantaged community. तो जैसे laws to help है जिसमें SC, STs और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ की हेल्प है करनी है. आवर गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इनिशिएटेड सेवरल स्कीम्स फॉर दिस पर्पस. दिस इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ठीक है, तो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की सभी गाँव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एक्ट 2005 में हुआ था ये, और सबको मिड डे मील स्कीम मिलेगी. तो ये सरकार द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स होती हैं. Keeping in mind the Article 15 of the Constitution of India, the following privilege have been given to Indian citizens. तो इस आर्टिकल 15 को ध्यान में रखते हुए लोगों को दिए गए हैं कुछ उनके प्रिविलेज. एवरीवन इज इक्वल एज पर द रूल ऑफ लॉ, सब बराबर हैं. एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सबको पब्लिक प्लेस एक्सेस करने का
अधिकार है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। द लॉ एंड सम स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटी टू इंश्योर इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो कुछ ऐसे लॉ भी हैं या कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी को इक्वालिटी दिलाती हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। Ramps are made in educational institution, offices, etc. ensure that physically challenged or different able have access to the building। तो यानी रैम्प्स बनाए जाते हैं, आप देखेंगे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स में कई जगह रैम्प्स, सब जगह रैम्प्स आजकल बनाया जाता है ताकि जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको भी पूरे मौके मिले और उनको भी पूरा अधिकार मिले। मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट रन स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन रिसीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो मिड डे मील चालू की गई हैं गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे लोगों को, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। दिस स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। Then we have students of economically weaker section, EWS can take admission in private run public school in their neighborhood। तो EWS वाली स्कीम भी चलाई गई जिसमें कि जो वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। सम सीट्स आर रिजर्व इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जॉब्स एक्सेट्रा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। दिस कोटा सिस्टम इज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो ट्राइज टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी। तो कुछ सीट वगैरह भी रिजर्व रहती हैं जबकि इंस्टीट्यूट्स में और जॉब्स में SC STs और OBC के लिए। दो सच इनिशिएटिव हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी अमंग द पीपल येट दे वर्क वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं लोगों को इक्वली लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा स्लोली काम करते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू एक्सेप्ट ऑल मैन एंड एज इक्वल चेंजेस वेरी स्लो। तो लेकिन ये धीरे काम करते हैं यूँ क्योंकि सबकी ना माइंड सेट बहुत अलग अलग है इंडिया में, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पहला इसका कारण है कि सब लोग इक्वल नहीं मानते एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सबको सबसे पहले मानना होगा कि हम सब बराबर हैं। इवन दो द पीपल आर अवेयर ऑफ द लॉ दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एक्सेट्रा। मतलब पढ़े लिखे लोग भी इस जो इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन टुडे देयर आर मैनी स्कूल्स इन द कंट्री वेयर द लो कास्ट children are discriminated against, are treated unequally, their dignity is not respected। तो आजकल ऐसे स्कूल भी हैं कंट्री में, आज भी ऐसे कंट्री में स्कूल हैं जहाँ पे जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको या लो कास्ट के जो बच्चे हैं उनकी डिग्निटी को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। People must think that no one is inferior or superior and that every person deserves to be treated with dignity and equality। वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है क्या, इनइक्वालिटी। द फाइट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल फॉर देयर डिग्निटी शुड बी कंटिन्यूड। तो फाइट होती है रिकॉग्निशन की, पहचान की यहाँ पे फाइट होती है, डिग्निटी को मेंटेन करने की यहाँ फाइट होती है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक अनलेस इट ट्रीट्स ऑल इट्स सिटीजन एज इक्वल। तो कोई भी कंट्री अपने आप को कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं कह सकती क्योंकि वो भी वहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी होती हैं। इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब इक्वालिटी का इशू कई सारी कंट्रियों में रहता ही है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। तो USA तक जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर उनको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता है। Then we have they were denied equality before the law even in public places like while traveling by bus the African American had to sit either at the back of the bus or get up from their seat and offer it to white person। तो यानी बसेस में भी उनको ट्रैवल करते हुए क्या होना है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो अफ्रीकन्स थे और अमेरिका में आके बस गए, फिर उनके वहीं पे ही उनके जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन हो रहे हैं, तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श वहाँ पे पीपल होते हैं, ठीक है। और उनको क्या है कि बस में भी ट्रैवल करते समय या तो खड़े हो जाओ नहीं तो पीछे बैठो। द सिविल राइट्स मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट दैट बिगेन इन USA in the 1950 in which African American people demanded
equal rights and an end to racial discrimination. तो एक सिविल राइट मूवमेंट वहाँ पे चला 1950 में, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने अपने इक्वली राइट्स को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बोला. रोजा पार्क्स वॉज द मोस्ट important leader of this movement, who once refused to give up her seat to a white man as she was tired after a long day at work. तो रोजा पार्क इस मूवमेंट की सबसे मेन फेस रही, क्योंकि इन्होंने अपनी सीट ऑफर करने से मना कर दी एक वाइट मैन के लिए, क्योंकि वो पूरे दिन काम करने के बाद बहुत थक गई थी. शी वॉज अफ्रीकन अमेरिकन वुमन एंड हर रिफ्यूजल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट लोकल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. और उसके रिफ्यूजल से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फैला. Later, the Civil Rights Act of 1964 was passed that prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. The act also laid down that all schools would now be open for African American children. This meant that now they would attend separate school, would not attend separate school that were specially set up for them. तो वहाँ से फिर एक एक्ट निकला 1964 में, जिसमें कि सबको बराबर हक मिला और उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म किया गया. ठीक है, वहाँ पे उसको क्राइम मान लिया गया और फिर बच्चों को भी, सब बच्चों को सेम स्कूल में एडमिशन मिलने लगा. जो पहले था कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों को क्या था कि वो सिर्फ लेंगे, उनके लिए अलग स्कूल बनाए जाएंगे, उनमें एडमिशन. Keywords: dignity, the fact of being given honor and respect by people. Constitution, a document which lay down the basic rule and regulation of the people and the government of a country. Civil rights movement, a movement that began in USA in 1950, in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination. Universal adult franchise, it means that all adults who are 18 and above citizens have the right to vote irrespective of their social or economic background. Points to know: equality is the key feature of a democracy. Universal adult franchise ensure political equality in democracy. Equality is the main features of Indian democracy. In the democracy, the decision making power are distributed between different governmental bodies. Democracy accommodates difference and guarantees individual dignity to all. Article 15 of the Constitution of India 1949 prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The civil rights movement resulted in the formation of the Civil Rights Act of 1964. Democracy ensures that people are free to express their views from the government and expect equal treatment. Along with this, the rule of law makes democracy the most favored form of government all over the world. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.